Hello everyone, welcome to the online classes. Today we shall study the 5th chapter of Vistas. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike. Should Wizard Hit Mummy is a children's story dealing with the serious theme of good parenting and the adult tendency to curb the curious and questioning mind of a child. Jack, the father of 4-year-old Zoe, often shortened in the story to Zoe, tries to teach her moral values through his stories. Every story is a slight variation of the same story. Zoe, being very young, fails to realize the true worth of uniqueness. Jack tries hard to convince her that one should not change his identity or personality just to get accepted by the society. There are 4 main characters. Jack, he is a loving and concerned father. Zoe, she is Jack's 4-year-old daughter. She is intelligent, impatient and curious. Roger Skunk, he gets the wizard to give him a pleasant smell, but Mummy gets the change reversed. Mummy, she is Roger's mom, who insists on having her way with Roger by forcing him to follow traditions. Let's overview the chapter. Jack tells his daughter Jo, a 4-year-old girl, a story every evening to make her sleep. Each new story was a slight variation of a basic tale. Today, he tells her a story of a stinky skunk. His name was Roger Skunk. He smelled so bad that none of the other little creatures of the forest would play with him. He went to a wise owl with his problem. The owl sent him to a wizard. He used his magic spell and changed his very bad smell to that of the roses. Roger Skunk was very happy and ran out into the forest. All the other little animals gathered around him, became his friend, and they played a number of games. When it was evening, they all ran home to their mummies. तो बच्चों, इस कहानी में होता क्या है कि जैक अपनी 4 साल की बेटी को हर दिन एक नई कहानी सुनाता है और हर कहानी एक वो बेसिक कहानी का ही थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा उससे अलग होती है। अब ये आज जो वो कहानी सुनाने वाला है वो स्टिंकी स्कंक, स्टिंक मीन्स स्मेल आना, तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है स्कंक से और बाकी जंगल के और बच्चे, जानवरों के बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं, जिससे कि वो बहुत दुखी हो जाता है और एक बूढ़े उल्लू के पास जाता है। बूढ़ा उल्लू उसको जादूगर के पास भेजता है और जादूगर अपने जादू से उसके अंदर किसकी स्मेल भर देता है? द स्मेल ऑफ रोजेस। और वो बहुत खुश हो जाता है और वो बच्चों के साथ वापस आता है जंगल में और सारे जानवरों के बच्चे इकट्ठा होते हैं और वो लोग खूब मस्ती करते हैं और शाम को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। When Roger Skunk went home, his mummy said, "What's that awful smell?" Roger Skunk said, "It's me, mummy. I smell like roses." तो जब ये स्कंक रोजर स्कंक घर पहुंचता है तो मम्मी पूछती है कि अजीब सी स्मेल क्या आ रही है। तो बच्चा तो बहुत खुश है क्योंकि आज उससे किसकी स्मेल आ रही है? रोजेस की आ रही है, गुलाबों की खुशबू आ रही है। तो वो बहुत खुश होके क्या कहता है? "It's me, मम्मी, ये मैं हूँ। I smell like roses. मैं तो फूलों की तरह महक रहा हूँ." She asked, "Who made him smell like that?" माँ पूछती है, ऐसा तुम्हारे अंदर ये गंध किसने डाल दी? Roger Skunk said, "The wizard." She, along with Roger Skunk, went to that wizard. वो उसको लेके wizard जादूगर के पास जाती है. She hit her umbrella on the head of the wizard and demanded to change the rose smell to that original smell. वो एक उसके umbrella से उसके सर पे मारती है जादूगर के और उससे कहती है कि इससे रोजेस की स्मेल को हटाओ और फिर से इसकी ओरिजिनल स्मेल इसके अंदर डालो. The wizard compiled the instructions. जादूगर वैसा ही कर देता है. रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर. अब रोजर स्कंक के उस बच्चे से अब गुलाबों की खुशबू नहीं आती है. ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन. उससे फिर वही स्कंक रोजर जो स्कंक की जो बदबू थी वही आने लगती है. Daddy Skunk returned home from Boston. They had their supper. When Roger Skunk was in bed, Mummy Skunk came up. He hugged him and said that he smelled like her little baby skunk again. She loved him very much and that's the end of the story. तो फिर शाम को पापा आते हैं
स्कंक पापा घर आते हैं, वो लोग खाना खाते हैं, फिर वो सोने चला जाता है। मम्मी स्कंक आती है, उसको बहुत प्यार करती है और उससे कहती है कि अब तुम मेरे प्यारे बच्चे जैसे लग रहे हो, अब तुमसे प्यारे स्कंक बेबी की जैसी स्मेल आ रही है। और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। जो स्टिल कुड नॉट रिलेट टू द स्टोरी, लेकिन ये कहानी का अंत तो होता है, लेकिन जो को ये कहानी का अंत अच्छा नहीं लगता। शी कॉल्ड मदर स्कंक स्टूपिड, वो कहती है मम्मी क्या है, मम्मी स्कंक क्या है, बिल्कुल स्टूपिड है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसके शरीर से जो बेबी स्कंक था, जो बदबू थी वो हट गई थी और रोजेस की खुशबू आने लगी थी, और फिर से मम्मी ने गंदी बदबू डाल दी। तो ये एंड जो है किसको बच्चों, वो 4 साल की जो बिटिया है जो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शी आस्क्ड जैक टू टेल हर अ स्टोरी इन विच द विज़र्ड हिट्स मदर स्कंक। वो कहती पापा आप अगले दिन ऐसी कहानी सुनाना जिसमें जादूगर किसको मारेगा, मम्मी को मारेगा। Jack tried to reason with her and told her that Roger Skunk loved his mother very much and Mother Skunk know what was right for her baby. तो पापा बहुत उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने उसकी माँ जो उसके लिए कर रही है, माँ ने उसके लिए जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। एक्चुअली Zoe is a little girl who was accustomed to hear stories with happy endings from her father. असल में एक जो है वो 4 साल की लड़की है और उसको कहानियां क्या अच्छी लगती हैं जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू वर्थ ऑफ वंस ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि हर इंसान के अंदर अपनी खूबी होती है। The moral issue that the story raises is whether parents are the best judges of what is good for their child or not. ये कहानी इस एक moral issue को उठाती है कि क्या माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक सही निर्णायक हैं कि क्या बच्चे के लिए सही है और क्या नहीं है। A sharp contrast is displayed in the story about the child viewpoint and an adult's perspective of life. इसमें 2 नजरिया है, एक बच्चे का नजरिया और एक उसके एडल्ट मम्मी पापा का नजरिया। On the other hand, her father ended the story by saying that the mother was right in getting Roger's smell back to its original state, implying to his daughter that parents knew what is best for their children. इसके साथ ही साथ जो पापा हैं, जैक हैं, वो बच्चे को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी ने उस बच्चे के लिए, बेबी स्कंक के लिए जो डिसीजन लिया उसकी ओरिजिनल स्मेल डालने का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो भी निर्णय लेते हैं वो अच्छा लेते हैं। ही ऑल्सो एडवोकेट्स दैट चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स ओपिनियन एंड ओबे देम अनक्वेश्चनिंगली। और इसके साथ ही साथ जैक एक चीज और भी कहता है कि बच्चों को अपने माँ बाप की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जैक also narrated that all the other animals finally accepted Roger Skunk as he was emphasizing the importance of a person's originality and individuality. एक चीज और भी इस कहानी में उठती है बच्चों कि कोई भी इंसान है, उसकी एक अपनी व्यक्तिगत खूबी होती है। हमें औरों की देखा देखी अपने को नहीं बदलना है। हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर उसकी एक अपनी खूबी होती है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।